Today I'm going to show you how to install a fan for exhaust fan to let carbon dioxide escape from the incubation chamber. This is the newly finished incubation chamber. It was used for cordyceps militaris previously. Now I will use to grow other high-valued mushrooms like shiitake, ganoderma, turkey tail, enoki, and some other mushrooms. So the floor is painted with epoxy paint. Racks are also painted with the epoxy. There are two air conditioners. One that is 1.5 ton. This is 2 ton. This is F94, that is Woodier auricularia. See, it was inoculated on 27th February. Mycelia run is going on, good condition. 3 days since inoculation, very good. It was inoculated using liquid spawn. We have some other samples. Okay. Okay. These are some other mushrooms, straw based. This is F15 Tramitis versicolor, inoculated using grain spawn on 27th February. Mycelia run has started. Okay, that's good. That's good. So all the bags have mycelia run in the beginning phase. This is F36 Ganoderma lucidum, also inoculated using grain spawn. Mycelia has started. So that's good. I don't see any mycelia growth so far in this wheat straw. Okay, okay. Some mycelia is there, also there. Okay. Grain spawn seem perform better in this case. Okay, mycelia run has started. That is F93, that is Calocybe indica, milky mushroom. This is 32, that is Pleurotus florida. This is 69, that is Ostitus. Another is 61, that is also Ostitus. The lower one was inoculated with the liquid spawn, grain spawn. In this room we have exhaust fan and inlet. This is exhaust fan sealed with muslin cloth so that to prevent the entry of any insect inside the incubation chamber. This will pull out air from the incubation chamber and throw it outside. This is air inlet unit, 6-inch circular fan. Okay, let me show you from the outside. In all cases we use two filters. This is air conditioner filter cloth, that is 0.3 micron, and it is very good. 0.3 micron is very good. You can use HEPA filter also, but HEPA filter is relatively very costly. Like it will cost you around 4 to 5,000 or 6,000 rupees for a 4-inch duct fan. This cloth costs 200 rupees per square feet. So that is relatively much cheaper. Another filter is, this is 10 micron air filled cloth.
it is 10 mm in thickness, and filter efficiency is 10 micron. So when both are combined, it will be the outermost filter to prevent the filter out the larger dust particles, and this is inner one 0.3 micron to filter the fine particles. So this one we have बाहर में ये लगा हुआ है नॉन वुवन polypropylene cloth. This is again 0.3 micron filter cloth for air conditioner, and this is non-absorbent cotton, a very thin layer, so that air will flow from outside to inside, and meanwhile it will be filtered through. ये सबसे पहले फिल्टर होगा नॉन वुवन पॉलीप्रोपाइलिन क्लॉथ से, कोई डस्ट एंट्री नहीं करेगा, कोई इंसेक्ट एंट्री अंदर नहीं जा सकता है. फिर फिल्टर होगा ये नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन से. फाइनली फिल्टर होगा ये 0.3 माइक्रोन फिल्टर से. इसी का सेम रेप्लिका, प्रॉक्सिमल रेप्लिका हम लोग बना रहे हैं यूजिंग ये डक्ट सर्कुलर डक्ट फैन है. इसका डाया अप्रॉक्स 3.75 इंच है. Air flow direction from this side to this side. It will be installed in that window. वो ऊपर में लगा है एग्जॉस्ट फैन, वो भी काम आएगा, उसका भी अभी फिनिश करना है, बट स्टिल इट इज स्टिल करेंटली वो कवर्ड है. नीचे में हमें इनलेट के लिए फिल्टर लगाना है. ये सेटअप है हमारा. ओके, एयर का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रहेगा. सबसे पहले 0.3 माइक्रोन का ये फिल्टर लगेगा. उसके बाद ये दूसरा फिल्टर लगाएंगे 10 माइक्रोन का. जीरो 0.3 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, कुशनिंग के लिए और हाइट एडजस्टमेंट के लिए, ताकि इस पे फैन इसी पे रेस्ट करेगा. ये एक अलग से बनाया हुआ है. ये कंटेनर आप देख रहे हैं. इस कंटेनर को यहां से काट करके एक डक्ट के जैसा बनाया गया है, क्योंकि डक्ट का जो आउटलेट है वो यहाँ से उस तरफ नहीं पहुंच पा रहा था, तो ये काट के बनाया हुआ है डक्ट. ये बहुत अच्छा से स्नग फिट होता है. इसे मैं बाद में हॉट वुड लगाकर फिक्स कर दूंगा. दैट्स वेरी गुड. दिस येलो hot glue stick is very strong, very strong. I'm very happy with the performance. Done. I will finish it later if needed. इस फैन को मैं डक्ट को ओके गुड. अब बाहर से देख लेते हैं. ये फैन यहाँ पे फिट है. एयर फ्लो फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड. कुशनिंग है. डक्ट कंटिन्यू है. ये डक्ट बाहर आ गया है, इसको सील किया जाएगा. ये जो खाली जगह है इसको हॉट ग्लू से सील करूंगा. इस पे फिल्टर लगेगा. मैं फिल्टर लगाने के बाद देखता हूं. ओके, फिल्टर कवर को यहाँ पे बांध दिया गया है. ये एग्जॉस्ट है, इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. ये वहाँ पे भी 10 माइक्रोन का लगेगा. अंदर से मे बी पीपी क्लॉथ लगाएंगे. फैन चल रहा है, कुशनिंग दिया हुआ है, नो टर्बुलेंट वाइब्रेशन. दैट्स गुड. मैं थोड़ा सा आपको एयर फ्लो दिखाता हूँ.
airflow rate was initially without the cloth, without the filter, it was 8 meter per second. Now it is 2.5 meter per second. The capacity of this one is around 300 meter cube per hour. After installing the filter, it has become around one third. That accounts to around 100 meter cube per hour, and even lesser. Maybe even if it is 50 meter cube per hour, and that is 5000 cubic feet per hour. That's a very large volume. तो ये फिल्टर काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा. मशरूम के लैब में जो इंक्यूबेशन चैम्बर, उसमें फ्रेश एयर आना चाहिए, एग्जॉस्ट बाहर जाना चाहिए, प्लस बाहर से कोई भी डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट, एटलीस्ट स्पेसिफिकली इंसेक्ट, फ्रूट फ्लाई, कोई दूसरा इंसेक्ट अंदर नहीं आना चाहिए. ये सेटअप फुल प्रूफ है और अच्छा काम करता है. हेपा फिल्टर लगाएंगे अगर इसमें हम हेपा फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जाएगी अप्रोक्स 4 to 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, और एनुअली बदलना है. इसमें जो एसी का फिल्टर क्लॉथ लगाया गया है वो बहुत सस्ता है, अप्रोक्स रुपीज 200 पर स्क्वायर फीट, और 2 महीने में एक बार बदलेंगे, साल में कितना भी जाएंगे तो 1200 रुपए का पड़ेगा. अगर हेपा फिल्टर यूज करेंगे तो कम से कम 4 से 6 हजार का कॉस्ट आएगा. अगेन ये हमारा दूसरा सेटअप है. ये 8 इंच का डक्ट फैन है, वो 4 इंच का सर्कुलर डक्ट फैन है. ये WPC बोर्ड है. ये काटने में बहुत आसान है, मैं भी खुद से भी कर सकता हूँ, और थर्मल इंसुलेटर भी बहुत अच्छा है. तो ये सेटअप काम करेगा. ये हमारा फिनिश हो गया है. इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. फैन चल रहा है, बस वो फिनिश करेंगे. बाहर से फिल्टर उसमें लगेगा कि इंसेक्ट अंदर नहीं है, ये हमारा काम फिनिश हो जाएगा. सो अगेन, मोस्ट ऑफ द मशरूम इंक्यूबेशन चैम्बर में फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन बहुत बड़ा इशू है. एक बार आना शुरू होगा तो आप इसे रोक नहीं पाएंगे. तो साफ सुथरा रखना एक अच्छी बात है. प्लस जो एयर इनलेट सिस्टम है या एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कंप्लीटली वो फ्री ऑफ एनी होल्स, परफोरेशन, सबसे फ्री होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए. ये अच्छी चीज है. ये नीचे में जो दरवाजे में जो परफोरेशन बचता है, जो होल बचता है, जो फ्री स्पेस बचता है, उसको भी फोम से सील कर दिया जाएगा. आज ये फाइनली इसको एक वाइप आउट करेंगे 70% इथेनॉल से, रूम को वाइप करके, क्योंकि हमने अभी काम किया है तो टर्बिडिटी, थोड़ी सी डस्ट आई होगी. ये काम करके हम लोग इसको इंक्यूबेशन चैम्बर के जैसा हो रहा है. बाकी मशरूम ओके. ये हमारे यहाँ बहुत सारा सैंपल अभी रखा हुआ है. लाइट एक्चुअली ये डार्क का है, लाइट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ये व्हीट स्ट्रॉ है, ये सॉ डस्ट है, उधर भी कुछ सॉ डस्ट है. ये बैग कल ऑटोक्लेव हुआ है. अगले मे बी 1 वीक के अंदर ये मैं इसको इनोकुलेट कर दूंगा, और ग्रेजुअली हर वीक में अप्रोक्स 4 क्विंटल 400 किलोग्राम ऑफ सबस्ट्रेट यूज हम लोग कर सकते हैं. ओके, कोई समस्या है, कोई संशय है, कोई सजेशन चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कैंडली लेट मी नो. एंड हैप्पी होली. थैंक यू.